did another total. जब भी 160 पार करते they always defended. इस बार उनका जो bowling lineup था was very young, very inexperienced. Mayank Yadav, man, जो भी मैं बोलूँ बहुत कम तारीफ है. Incredible bowling, express pace, 155 plus. He's bowled the most deliveries above 155 in the IPL, and उसने 50 बॉल भी complete नहीं करे शायद मेरे हिसाब से. तो yeah, what an incredible performance from him. The difference between this both two sides are a lot of things. I mean, LSG तीनों डिपार्टमेंट में डोमिनेट करे आरसीबी को, लेकिन इन पर्टिकुलर आई विल पॉइंट आउट द फील्डिंग. क्विंटन डिकॉक का ड्रॉप कैच जब 30 पे था, एंड देन जब निकोलस पूरन 0 पे था उसको भी ड्रॉप करे, एंड देन यू नो द डेथ ओवर्स द वे निकोलस पूरन स्मैश्ड इट, इट वाज incredible for Lucknow. And yeah, another home loss for RCB. They will be kicking themselves. They'll be very upset कि और एक मैच हार गए उन लोग, एंड there will be a lot of pressure on this team. जब bowling नहीं चल रही, बैटिंग चल रही है, जब बैटिंग नहीं चल रही, bowling नहीं चल रही, I don't know what's happening over there. Plenty of chaos. But from LSG, you have to give credit to the KL Rahul, Justin Langer, and the whole team. They've done an incredible job. They've unearthed some superstar youngsters. Mayank Yadav, he is breaking the internet right now in this IPL. जो पेस के साथ डाल रहा है, एक्यूरेसी के साथ डाल रहा है. The ball to Cameron Green was the ball of the day. Impeccable line and length, and yeah, that's what you want to see as a fast bowler. वो साइट देखना बहुत ज़रूरी रहता for a fast bowler. It's the most satisfying thing when you beat the bat like that of a foreign batsman who is more comfortable playing pace bowling, but you beat him for pace and rattle the stumps. There's nothing gets better than that. And yeah, overall incredible from the Lucknow Super Giants. Like I said, all three departments dominating. Nicholas Purun, shout out to him. Great fielding, jo gun throw unhe kara tha, and then the catching as well. And KL Rahul's captaincy was very good as well. And yeah, a very good performance. Faiz, you enjoyed that from Lucknow? अरे भाई हिला दिया Lucknow, and वही I mean that's where I was backing Lucknow to do, not specifically Mayank Yadav, but more balanced side, many more spin components in their team, right? And again RCB का वही देखो, बैटिंग डिपेंडेंट तो है ही है, बट नाउ आपको विराट डिपेंडेंट भी दिख के आगे हैं, और ओवर डिपेंडेंसी है. विराट नहीं परफॉर्म करे आज, कैमरन ग्रीन डिडंट शो अप, ग्लेन मैक्सवेल अगेन फ्लॉप. चलो बॉल के साथ कर दिया, बट दैट्स नॉट योर रोल. मेजरली आपको हम लोग बैट के साथ देखना चाह रहे हैं. यू हैव टू गिव 1 or 2 starts. Faf again getting out unfortunately. He was looking in good form again, but didn't follow through with the with the boundaries that he hit. Bowling pathetic again, reached Topley. Siraj फिर पिट गया, 47 runs क्या दिया. Spin नहीं है आपके पास. Catching very poor. Lot of fielding mistake. I mean महिपाल रोल को एक शॉट आउट दे सकते हैं बेचारे को, ने अकेले लड़के अच्छा करा, बट और कोई खड़ा ही नहीं है टीम में. एंड दैट्स वेयर आई सी नाउ प्रोबेबली दिस सीजन अनदर 2 games एंड खत्म. आरसीबी अगेन आउट ऑफ. आई मीन दे लुक वेरी ऑर्डिनरी. अब मुंबई इंडियंस को हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 3 लॉसेस. आरसीबी के 3 लॉस हो गए शायद अभी नहीं, तो उन लोग पे भी अभी बहुत प्रेशर है. दे वन 1 game, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे लुक वेरी ऑर्डिनरी. आप जैसा बोले अनबैलेंस दिख रही, और जो उनके फॉरेन सुपरस्टार्स है उन लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे. एंड अभी आप देख सकते हैं बॉलिंग पे भी प्रेशर आ रहा है, क्या फील्डिंग पे भी प्रेशर आ रहा है. दे आर मेकिंग lot of mistakes. And मैं लखनऊ की भी तारीफ करना चाह रहा हूँ, because I think they, like you said, they look very well structured, well balanced, and जो young bowling lineup, I was just looking at their average age is like 22-23 man. तो बच्चे ही तो है. या तो लोग पूरे बच्चे हैं, and they bowled with so much maturity. I think KL Rahul, Nicholas Pooran, the leadership group have done a very good job इन लोग को groom करने और जो उन लोग को back कर रहे हैं. It's been really good. And that is where you have to question again the auction from RCB. मतलब I know it's gone long gone, but भाई तू 15 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए, that's what 27 crores on 2 players. Alzari Joseph, Cameron Green. What are you thinking like? And the thing is, once you spend that money, you have to get the best out of him. Like Lucknow spent like 16 crore on this guy, Nicholas Pooran. And he did not do much to prove 16 crore. The last club that he came from a franchise, हम लोगों का था Sunrisers Hyderabad, कुछ ज्यादा नहीं करा, but I remember Mustafa was the most upset because he said this guy can be killing it. Based on talent, अब मैं तो बोला I could be completely wrong, but based on facts there was nothing there stats wise. I was just doing based on talent, right? But that's what they did. They saw talent. I see talent in Cameron Green as well. I think that he's an excellent player. They're not getting the best out of him. They're not getting the best out of him. They're not getting the best out of a lot of players. आप Indian bowlers को भी वो आकाशदीप को अभी तक बैक नहीं करा, आज भी नहीं खेला शायद मेरे हिसाब से. तो आप players को बैक नहीं कर रहे हैं बराबर. And yeah, it's been poor from there. And look at Lucknow, bro. Like Quinton de Kock, the way they've backed him, he's killing it. Nicholas Pooran is killing it. You have the bowlers outstanding. Krunal Pandya, when they ask him, उन्हें आके performance दे रहा, तो their players are much more confident. भाई मजाक नहीं करो,
Mumbai look much more threatening than this RCB side. Despite whatever problems are going in their dugout, their batsmen have performed. तिलक वर्मा खड़के मार रहा, हार्दिक जितना भी बोलो बैटिंग वाइज कर ले रहा भाई, कुछ तो भी बाउंड्रीज मार ले रहा, बॉलिंग वाइज मधवल है, बुमराह है, या स्पिन में आपको शमसुल्लाह, पीयूष चावला है, यहाँ पे बैगन कोई है ही नहीं, लाइक कोई खड़के इनिंग्स खेलने वाला विराट के अलावा, विराट भाई नहीं तो खत्म, लाइक इट्स फिनिश, टाइम फिश है आपका मसला। और दिनेश कार्तिक कितना करें यार, हर गेम में थोड़ी मारेगा 20, महिपाल वर्मा फिर भी मारा, आई थिंक आई वुड ही ऑलमोस्ट गॉट इट बैक, बट कोई खड़े नहीं, अनुज रावत आउट हो गए। एंड भाई वो स्पीड तो अलग लेवल है यार, वो जो भुट्टा है वो 21 ईयर्स में, आई डोंट नो, कुछ डाइट के बारे में बात कर रहा था, आई डोंट नो व्हाट इज ईटिंग इन हिज डाइट, लेकिन जो 155 नॉर्मल नहीं है भाई, वो नॉर्मल बॉल डालना नहीं है, वो एवरी बॉल 150 हिट करे, दैट्स जस्ट नॉट नॉर्मल, सुपर ह्यूमन, मार्वल का कोई कैरेक्टर है मयंक यादव, ही इज नेक्स्ट लेवल। लाइक मेरे को तो समझ के बाहर है कि भाई दिस गाय इज द फ्यूचर। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू जंप द वैगन, भाई इंडिया लेके जाओ, अभी मत रश करो भाई, बंदे को थोड़ा बड़ा। या आई थिंक अभी देखो व्हेन यू बोल दैट स्पीड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले, मगर जब डेटा आएगा उस पे एंड व्हेन ही प्लेज अ लॉट ऑफ गेम्स, उसका फिटनेस का भी टेस्ट होगा, उसका वेरिएशन का भी टेस्ट होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेस्ट, बट राइट नाउ ही इज सुपर हिटिंग द लाइंस, या बट आई एग्री, लाइक उसको रश तो नहीं करना चाहिए भाई, बिकॉज अब जैसा श्रेयांश भाई बोल रहे हैं कि क्या T20 वर्ल्ड कप जाएगा, जा तो सकता, मगर हमारी इंडियन टीम जिस तरीके से इतने सालों से बनी है, रिसेंसी बायस पे शायद चले भी जाए, बट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं आप रश हो गए, उसका करियर होने से पहले कॉन्फिडेंस किल कर दोगे यार। The one thing also I am a bit tentative about is that KL Rahul खुद बोला प्रेजेंटेशन में that he was injured the whole season last year, उन्हें मुंबई में काम कर रहा है, they've been working on him very carefully, तो थोड़ा सा डेलिकेट इशू भी हो सकता पर उनको भी एक सीजन पे ले गए थे। हाँ वही है, जैसा फैंस बोले रिसेंसी बात हो सकता है, उमरान को भी खिला दिए इंडिया एक सीजन पे, तो आई थिंक उसको नर्चर करना चाहिए, लेकिन अब हम तो रोक नहीं सकते, अगर लेके जाना है धीरे धीरे एक एक फॉर्मेट में लाओ भाई, फॉर्मेट में लाओ, डोंट ब्रिंग डायरेक्टली इनटू अ वर्ल्ड कप सिनेरियो भाई, ब्रिंग हिम इन द T20, लेट्स सी हाउ ही रिएक्ट्स व्हेन ही गेट्स स्मैश्ड। अभी वो देखा नहीं, ही इज प्लेइंग गुड, हिटिंग द लेंस, एक बार पिटने तो दो, क्या लोग समझ जाएंगे उसको, क्या लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, लोग रीड करते हैं, यू डोंट थिंक लाइक देयर 9 मोर टीम्स आर रीडिंग हिम राइट नाउ, मयंक यादव के बारे में स्टडी कर रहे हैं भाई ये बंदा है क्या भाई, लेकिन परेशान तो जो हिटिंग द लेंस है ब्रो, लाइक आई हैव नॉट सीन फास्ट बॉलिंग इतनी नेचुरली कंट्रोल कोई करा तो डेल स्टेन था चल। या आई मीन yeah, like right now he's look good. I honestly he reminds me of Umran Malik more than anything, because he was like this, आके उन्हें नचा दिया था मैक्सवेल को और सबको with pace he was beating them. श्रेयस अय्यर को वो जो मेरे को अभी भी याद है सेटअप जो बाउंसर करके पे यॉर्कर डाला उन्हें, that was one of the best balls for me as a Sunrisers fan. लेकिन वही है मेरे हिसाब से कि like just been 2 games now, let's take it one step at a time and see. अभी फिलहाल हमको तारीफ ही करना है और कुछ नहीं कर भी नहीं सकते भाई, जब प्लेयर जो बंदे उन लोग के ऑपोजिशन में खेल रहा, जो बंदा उसका कैप्टन है, सभी तारीफ करे तो ऑब्वियसली हमको नहीं करने वाले, बट जल्दी मत करके उसको ऐसा एक चने के झाड़ पे चढ़ा दो कि भाई उन्हें ही 6 अगला मंत्री एंड स्टफ लाइक, डोंट डू दैट ब्रो, ही जस्ट 21 years old, long way to go है। But yes, Umran is someone who has to take a note, like a page out of this guy's notebook. Yeah, no, but that's the thing, right? It's a test for every Indian fast bowler who comes bowls 150 plus. They all look impressive initially, मगर फिर या तो पेस मेंटेन नहीं करते, नहीं तो उनका लाइन लेंथ गायब हो जाता है। अब जैसा बोल रहे हैं उमर भाई बोल रहे हैं कि उनकी इसकी लेंथ और अच्छी है, उमरान का हमेशा से पेस ओनली था, नहीं उसका लाइन लेंथ था फर्स्ट सीजन भाई, और उन्हें जो यॉर्कर भी डालता था बहुत लीथल था उमरान मलिक का, मगर वो लाइक मेंटेन नहीं करे, दैट इज द की थिंग। अब अभी जायसवाल के बारे में मैं जैसा बात करना एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ही हैड द बेस्ट स्टार्ट टू द इंडियन करियर, आई डोंट थिंक यू कैन गेट बेटर देन दैट, एक सेंचुरी एक डबल सेंचुरी मार दिया, लेकिन ही इज स्ट्रगलिंग अ बिट राइट नाउ, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज अ बैड प्लेयर, आई थिंक ही स्टिल प्ले, बट फॉर एग्जांपल अगर उन्हें 2-3 मैच और स्ट्रगल कर लिया, फिर सवाल उठेगा भाई वो लेके जाओ मत लेके जाओ। हां तो वही बात है मेरा, लाइक वी हैव टू होल्ड अ T20 की जो टीम है, इट शुड नॉट बी अ मिक्सचर ऑफ पीपल जस्ट परफॉर्मिंग इन 3 games एंड देन कमिंग इन, इट हैज टू बी अ मिक्सचर ऑफ एन इयर्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस, इयर्स काइंड ऑफ अ कोर टीम, इसलिए बोलते हैं ना उनके कोर मेंटालिटी, जो वर्ल्ड कप की टीम थी हमारी, कोर थी उसमें श्रेयस अय्यर थे, दो आई वाज अगेंस्ट केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर भाई इंजरी से आ रहे, बट रोहित शर्मा 2019 से ये प्लानिंग करना शुरू कर रहे थे अपेरेंटली, जो हमारे को बोला गया है कि भाई एक कोर टीम बन गई थी, उसमें विराट, रोहित, आपके गिल, आपके केएल, श्रेयस, सिराज, बुमराह, ये 7 लोग तो जाने ही जाने थे, बिकॉज ये कोर टीम बन गई। पर रही बात कुलदीप भाई एंड ऑल ऑफ दीस गाइस, दे फॉलोड थ्रू, and that's where like it comes down to the fact that even in the T20 World Cup you need similar people who've been through together, mindset मालूम रहता है 1 साल का, अब ये बच्चा आएगा उसको पहले तो भैया रहेगा, डरा हुआ रहेगा,
विराट को देख के हाँ, अच्छे अच्छों का पेशाब निकल आप जाता है। गैम्बल ले सकते हैं, ठीक है, मगर आप जो है अगर गैम्बल लेंगे फिर उसको बैक करना पड़ता है। देन यू हैव टू से कि भाई उन्हें पिटा भी तो वी हैव टू सपोर्ट हिम, दैट्स व्हाट यू और हैव टू अगर डू। वो पिट गया उसको ऐसा गायब मत कर दो कि भाई हाँ, वो वैसा मयंक गायब यादव नहीं कौन करना, था। बिकॉज क्या होता है प्रेशर बहुत जब इंडिया की जर्सी मिलती है आपको बहुत अलग वो रहता है, एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगा भाई उन्हें 155 डाला आईपीएल में अभी हर बॉल। अब वहां पे जैसा मैं बोलूं ही विल हैव कंपटीशन ओवर देयर, कंडीशंस भी अलग रहेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू बी बॉलिंग इन इंडियन कंडीशंस। तो वो अगर उसको उन्हें जज नहीं कर पाया एंड ही स्टार्ट्स मेसिंग अप, देन यू स्टिल हैव टू बैक हिम, सपोर्ट हिम इवन एज फैंस। आप नहीं बोल सकते कि भाई इसको क्यों लेके चले गए तो क्योंकि लेके आप लोग चले ही गए। बोले थे। हाँ, आप लोग ही बोले। लेके चले गए मेरे हिसाब से तो वी हैव टू होल्ड The आवर way they've right played, the way they've handled Rinku Singh is how they have to handle Mayank Yadav. Rinku Singh को भी ऐसा एकदम से हर फॉर्मेट नहीं दे दिया, T20 में ही खेल रहा अभी तक उन्हें। Then he went to the Lions, he's playing Test cricket over there. He's धीरे धीरे understanding different ways of like the you know formats, different formats. और आ जाएंगे उन्हें within a few years you'll probably see him in the ODI team and stuff like that. Next year maybe आ जाएगा, लेकिन जल्दी मत करो, रश मत करो, एज इन लोगों के साइड पे है, यू नो जल्दी हीलिंग बॉडी है, जल्दी रिकवरी होती है इन लोगों बॉडी की, एंड या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Yeah, but unless we're out of fast bowlers, like Siraj बहुत ज़्यादा बुरा पिट रहा है, because Siraj is also not looking in the best shape right now. But there is Avish Khan, there is Sandeep Sharma, वैसे bowlers भी जो experienced है आपके पास. You need to do a thorough analysis before you probably take a Mayank Yadav. Yeah, and also with Siraj, I think yeah he has been a bit inconsistent towards in the last few months. लेकिन Siraj का ये है कि he might be a different bowler with RCB and with Bumrah. India, Like yes, I know right now he's not looking good even for like individually, but maybe वो confidence अगर वापस आ गया is bowling with Bumrah and stuff, it might be a bit different. तो वही देखना पड़ेगा कि you know how he changes his form as well. I think he has the experience. Siraj has played World Cups, तो वो important खिलाड़ी है इंडिया के लिए। आज वर्ल्ड फेस्ट जो दो टर्निंग पॉइंट देते हैं, निखिलेश पूरन का इनिंग्स था एंड आपका ये मयंक यादव का जो स्पेल था, इट वाज इनक्रेडिबल। बट आल्सो शाउट आउट टू क्विंटन डी कॉक, मैन दिस गाय इज एन आईपीएल सेंसेशन इन द लास्ट फ्यू इयर्स। उन्हें जब मुंबई के लिए भी खेला था, ही हेल्प्ड देम विन आईपीएल टाइटल्स। नाउ ही शोन इमेंस कंसिस्टेंसी, जो आप लास्ट ईयर भी देखे, ही वाज टॉप ऑफ द चार्ट्स विद केएल राहुल, एंड अगेन यू नो ही टुडे अ फैबुलस इनिंग्स। यस, ही गॉट अ चांस व्हेन ही वाज ऑन 30, बट इट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स। यू नो ही टुक द अटैक। पहले मैं जब पिच देखा भाई एकदम से हरा हरा विकेट दिख रही थी, मैं बोला ब्रो दे गोना गेट अर्ली विकेट्स एंड एवरीथिंग, बट ही मेड श्योर he was 30 of 12 bro, so he made sure he put the pressure back on RCB, and yes, this was not a 200 pitch again. RCB Bangalore में उतना flat नहीं है wicket. So yeah, I think that innings was also very crucial, but because it gives you that momentum, that start. But yes, these two were game changers, man. Nicholas Puran and हमारे पास हैदराबाद में हाइट कम फाइट ज़्यादा है, this is exactly what Quinton de Kock is. 250 तो if I'm not wrong इसके back to back, and फैंटास्टिक फॉर्म में आ रहा वापस सुने। दिस गाय व्हाट मुस्तफा भाई पिक्स इन फैंटेसी रेगुलरली, बिकॉज़ भाई 14 मैचेस में 6 से 8 मैच में आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। आप उसके स्टार्ट्स निकाल लो ना हर गेम में, लाइक यू नो स्टार्ट मोस्टली देते रहता है उन्हें, एंड यू नो ही इज डन अ फैबुलस जॉब। आज उसको कीप ही डिडंट नीड टू कीप द विकेट्स आल्सो, सो ही कुड फोकस ऑन हिज बैटिंग। लेकिन या ही इज अ क्रेजी प्लेयर मैन। साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस। या हाँ, क्लच सिचुएशंस में, प्रेशर सिचुएशंस में राहुल का भी टेस्ट होगा, क्विंटन का भी टेस्ट होगा, पूरन का भी होगा, बट नाउ दे आर लुकिंग रियली गुड मैन, एंड दे हैव लॉट ऑफ प्लेयर्स इन फॉर्म, लाइक पांड्या, आपका यू नो दिस गाय मयंक यादव, केएल राहुल yet to hit form, but you know Nicholas Puran, Quinton de Kock, all these guys are hitting form at the right time. Marcus Stoinis भी विकेट ले लिया आज। हाँ, आज भाई मैं 2 मैच से ले रहा, साला बॉलिंग नहीं कर रहा, आज जाके बॉलिंग लेके विकेट भी ले लिया। बट या आई मीन इट्स गुड फॉर देम, फाइनली दे गॉट एन एडिशनल बॉलर, एंड देखते अभी क्या होने वाला है। आई मीन मैं वही सोच रहा, कायल मायर्स यहाँ गया, मेरे को तो उन्हें भी गायब दिख रहा है। आई डोंट थिंक ही केम टू द आईपीएल दिस टाइम। या आई डोंट नो इफ इज देयर ऑन द बेंच और नॉट, लेकिन उन्हें भी ऑप्शन रह सकता है, बिकॉज़ बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी। बट आई डोंट नो उन्हें है नहीं है स्क्वाड में। फिलहाल तो जरूरत नहीं है उसकी, जिस तरीके से उन्होंने खेल रहा है, आगे जाके हो सकती है, तो देखना पड़ेगा उसका क्या अपडेट है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये टीम अच्छी दिख रही है। एक मैच हारे, बट देव कम बैक प्रीटी वेल, एंड देयर डिफेंडिंग, यू नो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। चिन्नस्वामी में आईपीएल में टेंडेंसी, इट्स हार्ड, इट्स ऑलवेज टेंडेंसी टू चेस, इट्स हार्ड टू सेट अ स्कोर एंड डिफेंड सो कंसिस्टेंटली, एंड देव डन इट। जब 160 के ऊपर आ गया स्कोर, you know this time it was Mayank Yadav, but even last year if you see they've defended a lot of scores, and maybe chasing doesn't suit them because they do get under pressure, but they've been incredible. नहीं यार, ये ग्लेन मैक्सवेल का तो कुछ करना पड़ेगा। लाइक एक पाँव पे आप अफगानिस्तान को सेंचुरी खड़ के मारे, और आप अभी 2 पाँव हैं आपके पास। मगर मैक्सवेल आप पंजाब के लिए भी देख लो, उसके 1-2 जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रहते हैं। यू नो दुबई में 3 इनिंग्स अच्छे थे, उसके बाद इंडिया आके फुस हो गया, यहाँ पे भी फुस हो गया। So he needs to be more consistent. He's not shown that consistent. I think one season he was decent for RCB, he batted pretty well.
जहाँ पे शायद उन लोग प्लेऑफ रीच करे थे, बट यस ही हैज टू स्टेप अप इवन फाफ बिकॉज आई नो ही इज ओल्डर नाउ, इज 39 and he's not as as young as he was before and maybe not in his prime, definitely not his prime, लेकिन फिर भी आप expect करते हैं आपके senior players से, this is when when your team is struggling, when they're at the bottom, you need the big players to step up more than anything. And I think एक और चीज मुझे रजत पाटीदार यार, इसका तो लास्ट ईयर ऐसा बोले थे रजत पाटीदार नहीं है तो आरसीबी इसलिए क्वालिफाई नहीं हुई प्लेऑफ्स में, ये नंबर 4 बैट्समैन है हमारा, ये बैट्समैन आके ऐसा करेगा। आज भी आप देखो लाइक 29 ऑफ 19 स्लो हो गया, 29 ऑफ 21 स्लो हो गया था, he was not able to get it in the middle of the bat, shots नहीं लग रहे थे इसको, बेचारे का पैच तो बुरा चल रहा है ये since इंग्लैंड इंडिया का टेस्ट सीरीज। you see the top 5 देख लो आप, top 6 ले लो, अनुज रावत को मैं इंक्लूड करूंगा इसमें, 137 स्ट्राइक रेट विराट कोहली, 146 फाफ, 138 रजत पाटीदार, 0 ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, 100 कैमरन ग्रीन, 52 अनुज रावत, 52 11 ऑफ 21 बॉल्स। भाई कोई भी 150 टच नहीं कर रहा पावर प्ले में, तो अगर कोई नहीं टच कर रहा पावर में, जब आप 180 चेस कर रहे तो आप न्यू में मुश्किल में रहेंगे। बट देन महिपाल लोमरा का देखो 253 स्ट्राइक रेट आफ्टर फेसिंग 13 डिलीवरीज, अगर कोई 160 से स्ट्राइक कर रहा था इन द पावर प्ले, इट टेक्स द प्रेशर ऑफ। तो आई ब्लेम ऑल ऑफ देम, द 5 6 आप पाटीदार का नाम ले रहे बिल्कुल सही ले रहे, मगर आप फाफ को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, कोहली को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, मैक्सवेल को एंड कैमरन ग्रीन, दे ऑल हैव टू बी क्वेश्चनड, दे नीड टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले। And none of the top 3 at least even faced Mayank Yadav, right? Like Mayank Yadav he came थोड़ा बाद में आया, रजत पाटीदार के टाइम से बिकॉज़ उन्होंने मिडिल में आ गए थे, जब से उन्होंने थोड़ा chaos क्रिएट करे, बट ऊपर के दो तो बेचारे लग ही नहीं रहते, लाइक विराट एंड डुप्लेसिस के। अगेन पिच यस थोड़ा बहुत चेंज हो गया ये साल, बट आपका होम ग्राउंड है, यू नीड टू नो योर होम ग्राउंड बेटर देन योर ऑपोजिशन। मैं एग्री करता हूं। It got drier, you saw Punjab Kings, it was turning. Where is Karan Sharma? Where is the spinners? Why is it Mayank Yaadgar getting smashed? Mayank Yaadgar again 23 runs in 2 overs. Cameron Green कहाँ है भाई, उन्हें तो बॉलर बेचारा पिटी जा रहा, 25 रन दिया। तो अगेन इट कम्स बैक फॉर मी लाइक देखो अगर मैक्सवेल 5.75 पे जा रहा है, आई थिंक दैट वाज अ गुड मैचअप, 4 ओवर उसका दलाई मैं पहले से, दैट्स व्हाई आई पिक्ड हिम इन माय टीम, उसके टर्न हो रही थी, बट वही है कि उसका उन्हें पार्ट टाइम, अगर आपके पास प्रॉपर स्पिनर था, इमेजिन व्हाट द डैमेज ही वुड हैव डन राइट इन दिस पिच। तो आपको यही देखना पड़ेगा कि लाइक टीम सिलेक्शन क्या होने वाला है एंड हाउ दे डू इट। लुक, रवि बिश्नोई गॉट अ बिट ऑफ स्टिक टुडे फ्रॉम थिंग, कुणाल पांड्या अभी 10 रन खा लिया था, बट Siddharth, the way he opened up the bowling, very good, composed. Mayank Yadav तो incredible. नवीन और लक की bowling मुझे बहुत अच्छी लगी आज, because he backed up Mayank. कभी-कभी क्या होता है, एक बॉलर बहुत तेज है, आप रीड नहीं कर सकते उसको, आप दूसरे एंड से pressure gets let off and gets smashed, especially in a small ground like Chinnaswamy. But Naveen or Luck made sure that he stepped up. For me, his role was very crucial today. 2 wickets, 3.4 overs, economy of 6.81. Fabulous bowling. You have to back up your strike bowlers, and that's exactly what Naveen or Luck did. और मैं जितना उसका तारीफ करूँ कम करूँ, last time bro उसको इतना क्रिटिसाइज, उसको उतना वो कर देते बिकॉज कोहली से पंगा लिया था, बट वो ही इज taking that to a side, वो उन लोग एक दूसरे को like गले लग गए, and now he's focusing on his bowling and he's become a very good utility bowler. Now you look at this bowling lineup first. There's nobody on paper that you say, oh my god, अब उन्हें Mayank Yadav, we didn't know he's gonna, I mean there was 2-3 people who had mentioned, Nicholas Purin said it on the podcast, Manoj Dimri, our friend, also said it, and there's another journalist on Twitter who said it, but apart from 3-4 people, not many people are talking about this guy. But when he came on the scene, now everyone is talking about him, but look at that bowling on paper. Equally, अगर आप ये bowling देखते हैं, आप बोलेंगे this is weaker than RCB. 100%. And also equally like they're stepping up because उन्हें वो value करे जो time इन लोगों को मिल रहा फील्ड पे। मणिमरन सिद्धार्थ भी, I mean अच्छा खासा बॉलिंग करा, he also got a, यही तो बोल रहा हूँ। अभी बेंच पे कौन बैठा है आप देखो, शिवम मावी बैठे हुए, मैट हेनरी बैठे हुए, शमाल जोतो बैठे हुए, अमित मिश्रा बैठे हुए जो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर्स है आपके, युद्धवीर सिंह जो पेस बॉलर थे आपको 2 साल पहले अपन डिस्कस करते, उसकी भी 140 145, उसका कितना पेस था लास्ट ईयर आरसीबी का जो बंदा था, उसका भी 150 तक दलाई ने आज तक, तो उसका नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे, नेट बॉलिंग में कहां ढूंढ लेते उसको, एक मैच खेलाऊंगा, एक भी मैच नहीं खेला। तो मसला तो यही है राइट, आप ये बोलेंगे अटैक, अगर आरसीबी को दिया आप बोलेंगे भाई ये क्या बोलिंग अटैक है, कोई बॉलर ही नहीं है, हाउ कैन यू मेक कुणाल पांड्या यूर स्पिनर, ओ दिस गाय हु इज सिद्धार्थ, हु नवीन और लक इज नॉट दैट लेवल, you will say that it's about getting the best out of your players and playing as a team, and this is what RCB is not doing. They have some crazy individuals, but then everything is on there, and then who your other players are, you're not showing any confidence, or you're not being able to produce the best, and that is where the management comes in, that's where everything, captaincy also comes
you know, a lot of things come in. You have to look at that. Are the leadership group, whether it's Faf, whether it's Kohli, Andy Flowers there, I think, in the management, so are these guys being able to utilize the talent that they have? There is bowlers over there. अगर आप बोल रहे बेकार है, ठीक है, मैं ये देखता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बेकार है, मगर ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है, वही है, you have to get the best out of it. एंड देखो भाई, आरसीबी के बॉलर्स अगर आप पेपर पे डालो, अलजारी जोसेफ वेस्ट इंडीज का वन ऑफ द टॉप बॉलर, गुजरात जायंट्स से मॉन्स्टर था भाई, 6 फुट 12 हमारे अगेंस्ट ही लिया था, टाइटंस, हां अपने अगेंस्ट ही लिया था, मुंबई के लिए लिया था। उसके बाद आपका रीच टॉपली रिसेंटली ओपन पावर प्ले में डाल सकता, कैन गेट द बॉल टू मूव। सिराज इंडिया वन ऑफ नंबर 1 इंडिया रैंकिंग ओडीआई बॉलर। और कौन है भाई आपके पास, लाइक स्पिनर्स में चलो ठीक है, हम अभी भी मानते स्पिनर, कैमरन भाई डिसेंट डाल सकता यार, मगर फैज अगर मार्कंडे और वो मैच ना जिता रहे आप, एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रहा हूं, लाइक अगर आप इन लोगों को पेपर पे डालो अगेंस्ट दीज लखनऊ या हैदराबाद के बोला ना, यू स्टिल से कहीं ना जाने माने नामा है भाई। हम लोग करण शर्मा के साथ कितने बार प्लेऑफ है, आईपीएल जीते ना उसके साथ, या दैट हु इज दैट लेफ्ट आर्म बॉलर, विपुल शर्मा, उन्हें तो एबी डिविलियर्स मैन ऑफ द मैच नहीं था, पर उन्हें एबी डिविलियर्स का विकेट लिया था, याद है। एंड ग्रुप इन द प्लेऑफ सेमीफाइनल, द सेकंड प्लेऑफ जो क्वालीफायर 2 था, उसमें उसने वार्नर के साथ उन्हें खड़े रह के पार्टनरशिप दिया था। तो आप यू हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स एज वेल। आप नहीं बोल सकते भाई इन्हें प्लेयर नहीं है, आप सेलेक्ट करें उसको आप बेस्ट यूटिलिटी, उसको वैसा प्रिपरेशन दो, ट्रेनिंग दो, रोल दो आप, फिर उसके बाद वो देखना, प्लानिंग तो दिखती नहीं। आई जस्ट टेक अ फ्यू कमेंट्स। श्रेयांश भाई बोल रहे हैं एमआई और आरसीबी दोनों लास्ट है और दोनों अपने होम में हार रहे हैं। दुख तो इस बात की है कि ये दोनों टीम से हमारा इंडियन कोर बनता है। गुड पॉइंट। मयंक क्या T20 वर्ल्ड कप जाएगा? वरुण को भी एक सीजन पे ले गए थे। मयंक की लाइन एंड लेंथ भी अच्छी है उम्र में, वेराज उमरान हमेशा से पेस ओनली था। मयंक के आगे के एज के साथ स्पीड कम होगा, हो सकता है भाई, होपफुली नॉट, बट 5 साल ही है इसके पास। इंडिया के बैटर्स आज भी लेफ्ट हैंड फास्ट से डरते हैं, इसलिए पाकिस्तान वाले शाहीन और आमिर को लाए हैं। अवेश बहुत अच्छा डेथ बॉलर है, अवेश को तो जाना चाहिए। अभी तो मैं तो वही बोलूँगा, अभी सिर्फ 2 अप्रैल है, स्टिल 1.5 मंथ्स, इंजरीज कब हो सकते क्या हो सकते वो सब मद्देनजर भी रखना है अपने को। बट देखो अभी आई थिंक वर्ल्ड कप की बात से ज़्यादा दीज गाइस नीड टू फिक्स देयर ओन फॉर्म इंडिविजुअली। आप वर्ल्ड कप पे मत जाओ रिसेंटली, बट जो आप बोले बहुत इंपॉर्टेंट बात श्रेयांश भाई, ये है कि एमआई और आरसीबी में आपका मेजॉरिटी कोर बन रहा है, बुमराह, रोहित, विराट, सिराज, ये 4 प्लेयर हो गए। और इफ आई मिसिंग एनीबॉडी एल्स फ्रॉम द कोर, सूर्य कुमार यादव अगर आए तो उन्होंने रहेंगे। उसके बाद आपके तिलक वर्मा हैं, आपके हार्दिक पांड्या हैं। सो दिस इज समथिंग दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड आई डोंट थिंक स्टिल विराट कोहली को बिठाया जाएगा। दैट्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी आई थिंक ऑन दैट कि भाई T20 वर्ल्ड कप ये जाएंगे नहीं, even despite him not performing. Like this guy can be sat out. I mean, yeah, the thing is he scored runs also, but it's the strike rate which has been an issue. He scored runs, he's in 2 games he's had 250, so we can't drop him on runs or anything like that. मगर वही है, जब आप प्रेशर सिचुएशंस में आएंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ज्यादा सता रहा है विराट को, हर टीम में प्रॉब्ली एक लेफ्ट आर्म, 2 लेफ्ट आर्म। Yeah, he'll have to work on that. अब रोहित शर्मा also लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसको वो सताता है, तो they have some weaknesses, but अब देखना पड़ेगा क्या होता है जब वर्ल्ड कप को जाएंगे। राइट नाउ इफ यू लुकिंग एट टीम स्पेसिफिकली, यस, मुंबई एंड आरसीबी आर स्ट्रगलिंग मेरे हिसाब से। आई थिंक मुंबई फिर भी हम लोग बोलते हैं अच्छी टीम है, बट देयर आर आल्सो 2 लॉसेस अवे। आई स्टिल फील दे विल कम बैक, यू आल्सो फील दैट, बट लाइक दे हैव बीन अंडर प्रेशर। आरसीबी are not looking like anything. They can also come back, but they're not looking like a team which is going to challenge for the trophy right now, as of now. Still of early days I'm saying, मगर अब 2-3 गेम में अगर और मैच हारे तो फिर भाई बहुत परेशानी की बात है। और ये 10 टीम का IPL है, कंपटीशन ज्यादा है, you can lose any game and it will cause you problems. बिल्कुल, yeah, 100%. Especially at home, bro. They've lost now 2 home games. They've won 1 home game, 1 away game. They've lost. So their home record, you have to capitalize on home games as well. आप देखो RCB के साथ ये टूटा जो रिकॉर्ड था, जो पहले 7-8 विन्स थे होम के, कलकत्ता के तोड़े थे। तो अगर आप होम गेम्स हारेंगे और दूसरी टीम्स कैपिटलाइज कर रहे हैं एट होम, देन यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। सो नाउ देयर अवे फॉर्म विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, you look at the other teams as well. They have equally disturbing bowling lineups. Like Kolkata Knight Riders are not the best bowling lineup they have, and they're still managing to be a very difficult team. It's how you plan your bowlers, how you rotate your bowlers, how you understand कि हाँ भाई ये pitch में अब जैसे bad comments था again Mumbai Indians, yes we lost by 30, but the rotation of bowlers, he didn't bring himself on till like the 10th over. He waited, he bowled first मार्कंडे को दलाया, उसको दलाया, like he kept rotating. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन द फील्ड डिसीजन जो फाफ ले रहे हैं, एंड ऑल अगेन किसको आप ला रहे हैं, इम्पैक्ट पे कैसा स्टोन्स के ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
वो बहुत important है. And I think that's something that, and again, I just probably that 16 years हो गए, अभी भी RCB doesn't look like they learned anything from their mistakes. Yeah, they're not learning from the mistakes on the field, off the field. They're making a lot of errors today. We saw that in the catching display also was shambles, batting was shambles, bowling was shambles. But yeah, well, Lucknow on the other hand, man, they're looking like a good group. And it's someone like an influential guy like Gautam Gambhir who did a lot of hard work in the auction and preparing this team. Yeah. Him not being there, but still they're being able to manage these players. They're still trying to get out other players like someone like a Siddharth and these guys. They're still getting the best out of their players despite one guy missing. I think that's a very good thing from them. KL Rahul, I think I'll applaud him a bit as well because he's done a good job as captain. Nicholas Puran has done a good job too whenever he has to when he stood in as captain too. So I think they're looking very solid right now despite not having the biggest names, but they have a good structure right now. अच्छा team दिख रही है and yeah, they can fight for the playoffs, man. Right now Lucknow अब ये away win उनके लिए बहुत भाई आप 180 चिन्नस्वामी डिफेंड कर रहे बड़ी बात है मेरे लिए. अभी honestly best teams कौन से दिख रहे हैं आपको? Like राजस्थान रॉयल्स, आप चेन्नई सुपर किंग्स बोल सकते हैं एंड देन लखनऊ भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है. मेरे को हैदराबाद दिख रही थी स्ट्रांग लेकिन हार गए 2 मैच तो अभी तो नई वो परफॉर्मेंस आना है उनसे. गुजरात have won 2, lost 1, but again man, I don't know this team. Like if they make the playoffs, I'll be very shocking because जिस तरीके के players हैं उनके पास, they don't, and that's what it is. They don't exactly. look like you will have it. That's what you need, right? RCB बैटिंग लाइन पे लगा, अरे भाई इतना तो minimum. या भाई गुजरात को देखो कोई ना कोई आके कंट्रीब्यूट करता है. डेविड मिलर आके मार देता आपका साहा वहां पे कंट्रीब्यूशन दे दिया. शुभमन गिल हैज डन अ वेरी गुड जॉब ओवर देयर एज गुजरात कैप्टन. एंड वही है कि जब मैं पेपर पे देखता हूँ इनके पास भी बहुत प्रॉब्लम है जैसे आरसीबी के पास है, मगर उन लोग वो नहीं देखते. स्पिन डुओ है ना वहां पे असल. वो भी उन लोग उसको अभी लेके आए. पहले 2 गेम तो लेके नहीं आए थे उसको. एक मैच उसके बिना भी जीते थे. मोहित शर्मा जबरदस्त आ रहा है. मोहित शर्मा आके अब मोहित शर्मा को आप आरसीबी में डालो कुछ भी नहीं होगा. मैं आपको बोलूंगा, आप बोलेंगे हाउ कैन दे डिपेंड ऑन मोहित शर्मा. दैट्स व्हाट यू टेल मी. लास्ट टाइम आई सॉ हिम प्ले वाज मे बी 2015 फॉर इंडिया विद अंडर एमएस धोनी. मे बी आफ्टर दैट ही प्लेड 2. लेकिन मोहित शर्मा को उन लोग दे गेटिंग द बेस्ट आउट. दे मेड हिम इनटू इनविंसिबल डेथ बॉलर. दे गोस क्रेडिट ओवर देयर. राशिद एंड नो दे बीन आउटस्टैंडिंग एज स्पिनर्स. उमेश यादव आके भाई, उमेश यादव किसको खेलता था पहले? कोलकाता नाइट राइडर्स. उसके बाद से भी क्या हुआ? वही तो बोल रहा हूँ, राइट? लाइक दैट्स द थिंग, दीस गाइस डोंट मैनेज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर्स. गुजरात एंड अदर टीम्स आर डूइंग दैट. दैट्स द मेन. वही सवाल उठ रहा है कि आर दे टू फोकस्ड ऑन मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, या व्हाट द प्रॉब्लम इज? या लाइक प्लानिंग बराबर हो रही नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाट इट इज. लाइक गाने तो बराबर गा रहे हैं डग आउट में. देखो हर फ्रेंचाइज में तो ये रहेगा पार्ट ऑफ आईपीएल. ये सब ग्लिट्स एंड ग्लैमर तो रहेगा. आपके पास कैरियोके नाइट्स भी रहेंगे, सेलिब्रिटी नाइट्स रहेंगे, सब कुछ होएगा. लेकिन जो आप जब फील्ड पे रहते हैं एवरीबॉडी वांट्स टू विन, बट इट्स जस्ट दे डोंट लुक ऑर्गेनाइज्ड इनफ. दे डोंट लुक लाइक दे हैव द लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है. इट लुक्स लाइक 3 एलीट लोग हैं, फाफ, मैक्सवेल और विराट. ये 3 लोग बहुत हाई हैं, फिर बाकी के बच्चे हैं. इट जस्ट लुक्स लाइक वेरी इनका कोई लेके चलने वाला नहीं है यार. लोग लाइक एमएस धोनी के पास अगर आप अगेन वी हैव टू गो बैक टू एमएस धोनी व्हेन ही वाज द कैप्टन. सबको लेके चलना, या श्रेयस अय्यर को लेके चल रहा, केएल राहुल को देखो. इट डजंट लुक लाइक विराट. ऐसा दिखता है इनला अलग डिनर टेबल पे खाना खाते हैं, विराट, फाफ और ग्लेन मैक्सवेल, और बाकी के थोड़े बच्चे हैं. फिर 2-3 बॉलर जो अपने सेम कॉन्टिनेंट या सेम सिटी के हैं, वो लोग अलग खा लेते हैं. तो ऐसा नेवर लाइक अच्छी फ्लो नहीं है ये टीम में. अगर आप केएल राहुल की टीम को देखो, अच्छी फ्लो दिखा. क्विंटन कॉक एंड लाइक पुरन, ऑल ऑफ दे लाफिंग, बैठे मैच के बाद बैठे हुए गपशप लगा रहे. अब मुंबई में अब जाके आपको ये थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है ऑब्वियसली. बट पहले भी आप मुंबई को देखो, रोहित लेके चलता था. रोहित भाई हैं, रोहित भाई संभाल रहे, सूर्या रोहित भाई, बुमराह रोहित भाई, इनू रोहित भाई, हार्दिक खुद रोहित भाई. बट ये आरसीबी टीम में आई थिंक आई हैव नेवर सीन दैट ब्रदरली fraternity kind of a feeling. Yeah, बिल्कुल. I mean maybe they have that bond, like I've seen them. They're too like western influence, like football club kind of a feel. थोड़ा सा off the field में देखता हूँ, they have events and stuff, they look okay, but वही है कि ग्राउंड पे आके क्या हो जाता. अब आप देखो 180 जो स्कोर था, you're backing the chasing team, चिन्नस्वामी. वहां से ऊपर से अगर कोई एक मार दिया 50 यार्ड 160-70 के रन रेट पे, स्ट्राइक रेट पे, जीत जाते थे मैच. बिकॉज लोमरा आके जो फॉर्म में है, दिनेश कार्तिक, उन लोग मारते थे मेरे हिसाब से. लेकिन वही है कि जब सिचुएशन आ रहा मैच जीतने के लिए, आप वहां पे मैच को हरा दे रहे. आप 2 रन आउट हो गए, ठीक है. एक तो इनक्रेडिबल थ्रो था, बट फाफ का भी रन आउट मेरे को समझ में नहीं आया. सो
making wrong decisions at crucial times during a match and they're losing. जो जीतने के गेम्स है वो हार जा रहे हैं उन लोग। नहीं अपसेटिंग अब 180 पहले भी मारे थे, परसों हार गए थे जब बैटिंग फर्स्ट थे। यहाँ पे 180 चीज करना, वहाँ पे भी आप हार गए। आप अब ड्यू को ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ भी ब्लेम तो भाई पिच बदल गया आपका, ये भी नहीं बोल सकते पिच मुश्किल है, पिच के हिसाब से आप प्लेयर ही नहीं खरीदते तो आपकी गलती है। या तो लाइक आपका कोच एंडी फ्लावर है, आपका फ्लावर भाई क्या कर रहे हैं वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। माइक हेंसन था इससे पहले, उसको गालियां देके निकाल दी। तो लाइक ओवरऑल आई मीन आरसीबी जो भी आ रहा परफॉर्म नहीं कर रहा, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम देयर। इट्स लाइक ओनरशिप का प्रॉब्लम होगा, मे बी दे टू इन्वॉल्वड इन इट, और मे बी इट्स जस्ट लाइक वो मेंटालिटी मैच नहीं हो रही सबकी। दूसरे प्लेयर लाइक जैसे छोटे प्लेयर दे आर नॉट एबल टू लिव अप टू विराट, एंड दीस गाइज इज लाइक stardom or something, or maybe there's something like that. I don't know what it, we can't put one finger, just we can assume it, because हर अदर टीम में ये लोग जाके थ्राइव कर रहे। चहल वहाँ से निकला, राजस्थान में जीता, राजस्थान में ज़बरदस्त परफॉर्म करा, सॉरी। उसके बाद आपका कौन बोलते और कौन निकले यहाँ से, अपना मोहित शर्मा निकला, शिवम दुबे निकला, that's what it is at the end of the day, there's some kind of factor। केएल राहुल वहाँ से पंजाब गया, कैप्टन बना, पंजाब में 600-700 रन मारा। उसके बाद consistently he has more runs than Virat Kohli in the last 5 years. KL Rahul, yeah. I mean, that's why, there has to be a question over there. I mean, I have to give credit to their fans जो अब तक इतना support करते हैं. It's crazy, man. उन लोग जो loyal fans हैं, वो अच्छी बात, मेरे को एक ही अच्छी चीज़ दिखती है कि भाई fans But again, it's more like RCB has just that Virat factor. I don't know. मेरे को तो इन लोगों की loyalty बोलते हैं, like honestly. नहीं कुछ भी रहने दो, because एक player के पीछे दिखता है मेरे को ज़्यादा। नहीं मगर फिर भी एक प्लेयर पे रह रहा कुछ भी रहता। अब यहाँ पे मुंबई इंडियंस में भी प्लेयर आए हैं, हर टीम में रहते प्लेयर, बट लाइक मेरे हिसाब से लाइक एक प्लेयर भी अगर है, there's still that loyal fan base, like there's still there. The factor when this guy Virat Kohli leaves, or if he ever leaves, तब देखना है। Yeah, but वो if and buts मैं 16, he's been there for 16 years. They have won nothing. They've got like when he was captain, they came 9th and 10th also, but they still gone and backed him. Yeah. That is also for me like people, if this was Mumbai, they will say sack this guy. Yeah. They will say Mumbai is a hostile crowd. The reason why Rohit Sharma is backed is because he won. If Rohit Sharma is nothing, this is the same Wankhede which booed Sachin Tendulkar, the same Wankhede that booed Virat Kohli. If they booed Hardik Pandya, they would boo Rohit Sharma also if he doesn't win. They want winning mentality. RCB not like that. Like उन लोग भाई अगर विराट कोहली भाई कोई भी रहने दो, विराट कोहली I know is a superstar and everything, but still like AB de Villiers, they have good players, but to come out every season भाई ठीक है आप बोलते बड़ा प्लेयर है, मगर आप 6 मैच हार गए, फिर भी 7th मैच में क्राउड फुल है, तो कुछ ना कुछ है भाई लाइक वहाँ पे मेरे हिसाब से। I guess वो तो बोल सकता है। सीजन की like I'm saying that despite like I've seen seasons where they're 9th, they're not going to qualify, but the stadium is full, तो वो थोड़ा बहुत मैं क्रेडिट बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ फैंस को, but that's about it. Otherwise there's a lot of criticism for this franchise. कल अपना दिल्ली कैपिटल्स versus कलकत्ता नाइट राइडर्स मैच में, another match in Vizag. Delhi Capitals have got to a winning start in Vizag, जो उनका होम ग्राउंड है। अब देखना पड़ेगा फैंस आएंगे नहीं आएंगे, लास्ट टाइम पूरे चेन्नई के फैंस थे डिस्पाइट बीइंग अ दिल्ली कैपिटल्स होम गेम। इट्स श्रेयस अय्यर वर्सेस ऋषभ पंत, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी बिकॉज if you remember, Delhi Capitals captain was Shreyas Iyer, and then he was taken out and Pant was made the captain, even though Iyer had qualified for the finals just season before. तो वहाँ पे भी थोड़ा सा rivalry रहेगा. It's two young players, I mean not young but coming to their prime. Rishabh Pant, you can say is young, Shreyas Iyer is getting a bit older, but they are in prime form right now, or prime age to play cricket, and let's see what they do. It's going to be an interesting game. Looking forward to it. आज के लिए तो I think we've pretty much wrapped it up. Lucknow were outstanding. They dominated RCB in all three departments. RCB made a lot of mistakes, were put under pressure, and there's a mountain to climb right now, and they need to start winning games and take that pressure off everybody. Tomorrow we'll catch you for that Kolkata versus Delhi Capitals game. Make sure you hit the like button, सब्सक्राइब बटन. थैंक यू फैज फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन, श्रेयांश भाई, उमर भाई, जो भी ज्वाइन करे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया. और कल मिलेंगे KKR वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के लिए. टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट.